Hello and welcome everyone. This is the second part of the chapter India's foreign policy, and in the first part I had explained about the basic features of India's foreign policy. So now, as you all know, in the chapter, the new syllabus, as per the updated syllabus, you have to study about the relations between India and China, India and America, India, Russia, and India, Israel. Okay, so after that basic features of India's foreign policy, that is still in the syllabus. So please do watch part one. And from this part, I will be starting the Sino-Indian relations or the relations between India and China. Okay, so I'm starting right from 1949, and then we'll be shifting over to, we'll discuss the relations till present. Okay, so if it is not possible in this video to confine all that in one video, maybe the next video of this chapter will be the same on Sino-Indian relations. I'll continue the Sino-Indian relations in the third part as well, if it's not possible to do it in the second part. Okay, so let's begin. Peace and conflict with China. Now, China, as we all know, the full name of China, as you see today, is People's Republic of China, PRC. Okay, and this PRC came into being in 1949 after a civil war in China. Okay, and in this civil war, the revolutionaries were led by Mao Zedong. So here in this picture, you can see Mao Zedong, Mao Zedong. He is also known as Mao Zedong. So the communists formed in this civil war. The communists became victorious, and they formed the People's Republic of China. ठीक है. और जो दूसरा फैक्शन था इस सिविल वॉर का, वो था नेशनलिस्ट का. नेशनलिस्ट जब कम्युनिस्ट की विक्ट्री हो जाती है सिविल वॉर में, तो नेशनलिस्ट चले जाते हैं ताइवान, और वहाँ पे वो फॉर्म करते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, RIC. ठीक है, तो ये डिस्प्यूट अभी तक चल रहा है. चाइना कहता है कि ताइवान पे उसका है हक, और ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट समझता है, और कई कंट्रीज दुनिया के ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानते हैं अभी भी. फाइन, तो वो एक अलग कहानी है. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो 1949 में PRC कम्स इनटू बीइंग, एंड माओ जेडोंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और जो प्रीमियर थे वहाँ के वो थे जुएन लाई. ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि माओ जेडोंग जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और जुएन ली प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर की तरह हुआ, तो वो थे. ठीक है, तो 1949 में जब PRC का जन्म होता है, तो उसके बाद इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन चाइना, एंड इंडिया वाज एक्चुअली वन द फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द PRC, which is a big thing. Because if the country is born in such circumstances, everything depends upon international recognition. Okay, so India was first to recognize the communist government in China, and but there were others in the cabinet of Pandit Nehru who were very skeptical about China. तो उनका ये कहना था कि सिंस चाइना इज़ अ बिग पावर, तो हमको थोड़ा सा उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए और संभल कर चलना चाहिए. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर चाइनीज़ अग्रेशन. फाइन, अब जो हमारे रिलेशंस थे चाइना के साथ, वो बहुत ही पॉजिटिव नोट पर शुरू होते हैं. हिंदी चीनी भाई भाई ये नारा बुलंद किया जाता है. बोथ द leaders of both the countries, they exchange visit to each other. और ये जो पिक्चर है, ये 54 में जब नेहरू ने विजिट किया था चाइना को, तो उस समय के स्टेट डिनर की पिक्चर है. तो ये इस तरह से बड़े ही पॉजिटिव नोट पे शुरू हुआ, और जो एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू था इंडिया चाइना रिलेशन में, वो था साइनिंग ऑफ पंचशील. Now Panchasheel is like पंच, अगर इसको वर्ड को आप तोड़ेंगे तो पंच means 5 and शील means the principles of behavior. So 5 principles on which the relationship between India and China would go further. And among these 5 principles were respect for each other's territorial integrity, and equal relations on an equal footing, non-interference in the internal affairs of each other. तो इस तरह के 5 principles थे. ठीक है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव नोट पे इंडिया और चाइना के रिश्ते की शुरुआत होती है 1949 के बाद. लेकिन बहुत ही जल्दी ये कड़वाहट आनी हमारे रिश्तों में शुरू हो जाती है, एंड देयर हैड बीन 2 प्राइम रीजंस
of Indo-China disputes, which finally led to a war between India and China in 1962. So let's see those two causes. तो पहला जो इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना था वो था तिब्बत इशू. ठीक है. अब ये तिब्बत क्या था? तो तिब्बत एक टेरिटरी है, इसको एक बफर स्टेट की तरह से आप लेंगे. इट वॉज लाइक अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. नाउ व्हाट इज अ बफर स्टेट? बफर स्टेट एक वो एरिया होता है दो बड़े पावर्स के बीच में, जो कि उन दोनों बड़े पावर्स के बीच में एक कुशनिंग का काम करता है और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है. तो अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर आप इस मैप में चाइना को देखिए तो ये जो है ये तिब्बत था. ओके. अब ये जो एरिया था ये तिब्बत. अगर आप उस समय के चाइना को देखेंगे तो इंडिया का बॉर्डर चाइना से नहीं लगता था, इंडिया का बॉर्डर लगता था तिब्बत से. ओके. सो बिटवीन चाइना एंड इंडिया तिब्बत यूज्ड टू वर्क एज अ बफर स्टेट. नाउ तिब्बत कंसिडर्ड इटसेल्फ टू बी इंडिपेंडेंट. तिब्बत का ये कहना था कि इन हिस्ट्री वी हैड ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस. बट चाइना का ये कहना था कि तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना. Okay, and at different times the rulers of China had control over तिब्बत. ठीक है. तो अब इसको चलते चाइना जो है वो 1950 में took over the control of तिब्बत, occupies तिब्बत. ठीक है. अब चाइना जैसे ही 1950 में तिब्बत को ऑक्यूपाई करता है, इससे एक बहुत बड़ा चेंज आता है इंडो चाइना रिलेशनशिप में. ठीक है. क्या होता है कि जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया तो अब हमारा जो इंडिया का बॉर्डर था वो सीधे लगने लगा चाइना से, और एक बहुत लंबा बॉर्डर चाइना से लगने लगा. तो जो बफर स्टेट बीच में काम कर रहा था बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो गायब हो गया. इंडिया डिड नॉट से एनीथिंग ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत बाय चाइना. India's silence over this, and this has been considered as a big mistake because एक बड़ी पावर के साथ जो आपका एक बफर एरिया था वो वैनिश हो गया with the occupation of Tibet by China in 1950. ओके. और इससे आगे जाते हुए बाय साइनिंग पंचशील पे जब इंडिया ने अग्रीमेंट अपना दिया और 1954 में जब पंचशील साइन हुआ इंडिया चाइना के बीच में, तब एक तरह से हमने जब ये कहा कि वी विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईच अदर एंड वी विल रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ ईच अदर, देन वी इन अ वे कंसीडेड चाइना's क्लेम ओवर तिब्बत. ओके. इसको एक इंडिया की बहुत बड़ी भूल मानी जाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस पे इंडिया को ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए था. ओके. अब इसमें तिब्बत की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है इंडिया के लिए? ये इसलिए इम्पोर्टेंस है कि तिब्बत जो है बुद्धिस्ट का घर था. Buddhism, the birthplace of Buddhism is India, and there were a lot of Buddhists in India. और तिब्बत के जो पॉलिटिकल स्पिरिचुअल गुरु थे वो थे दलाई लामा. वो होते हैं दलाई लामा, अभी भी हैं दलाई लामा. तो ये जो दलाई लामा हैं ये बुद्धिस्ट के स्पिरिचुअल गुरु हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. फाइन. तो तिब्बत इनका घर था. अब जब से तिब्बत का ऑक्यूपेशन किया चाइना ने, वहाँ पे चाइना वाज स्लोली इंक्रीजिंग इट्स होल्ड ओवर तिब्बत और बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज हो रही थी ओवर द टिबेटन्स. इसमें जितनी भी बार दलाई लामा ने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, पंडित नेहरू से हेल्प मांगी, उन्होंने हमेशा इस चीज़ को टालने की कोशिश की कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम चाइना से आपके बारे में कुछ बात करें, क्योंकि पंचशील पे हमने ऑलरेडी एग्रीमेंट दे दिया है. ओके. बट क्या होता है कि 58 में एक आर्म्ड अपराइजिंग होती है इन तिब्बत अगेंस्ट चाइनाज ऑक्यूपेशन, और उसको क्रश करने के लिए जब चाइनीज फोर्सेस दलाई लामा को पकड़ने के लिए आती हैं, देन दलाई लामा crosses the border and comes over to the Indian side. And he seeks asylum in India, political asylum, राजनीतिक शरण उन्होंने इंडिया में मांगी, और इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने राजनीतिक शरण उनको ग्रांट की. ग्रांट इसलिए की क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट थे और उनके लिए दलाई लामा इज लाइक द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. ओके. तो इसलिए हमने उनको शरण दी. और अब इस समय एट प्रेजेंट दलाई लामा हैज मेड धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश एज हिज होम, and he is at present running the Tibetan government in exile from the
धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश। ओके, तो अब ये जो चीज थी इस पे चाइना बहुत इरिटेट हुआ। चाइना फेल्ट China took it in this way that you have given asylum to a traitor. For Chinese, Dalai Lama is a traitor because he led an uprising against the Chinese government in 1958. Okay, so China did not see it as in a good way. चाइना के लिए एक ऐसे था कि आप हमारे दुश्मन को अपने यहाँ पर शरण दे रहे हैं और ये अलाउ कर रहे हैं कि वो वहां से तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल को ऑपरेट करें। ठीक है, तो ये एक तिब्बत इशू इंडो चाइना रिलेशंस में एक खटास इसने ला दी। उसके बाद जो दूसरा इशू और जो मेजर इशू था जो अभी तक चला आ रहा है, दैट इज अ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब बाउंड्री डिस्प्यूट था क्या? देखिए, इंडिया और चाइना की एक बहुत लंबी बाउंड्री है और ये जो बाउंड्री है ये है करीब 3488 किलोमीटर्स की। ठीक है, इस बाउंड्री के जो इंडिया की जितना भी आपको रेड लाइन ये दिख रहा है ये इंडो चाइना बॉर्डर है। ठीक है, इसमें जो इधर जितना ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लग रहा है इसको कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर। इसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जितना ये यहाँ से उत्तराखंड से लग रहा है और सिक्किम के पास से ये है आपका मिडिल सेक्टर। ओके, और ये जो है ये जो अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है दैट इज द ईस्टर्न सेक्टर। Okay, so disputes over borders between India and China exist in the western sector and in the eastern sector. In the middle sector, there is no dispute. Okay, now what is the dispute? Understand this first कि जब ब्रिटेन का राज था इंडिया पे, when the British were ruling over India, then the British and the authorities, the government of Tibet had concluded several agreements रिगार्डिंग बॉर्डर्स। ठीक है, तो जो एक बॉर्डर लाइन बनी है ये यहाँ पे अक्साई चीन के एरिया में, ये 1800 में मतलब 1860 में जॉनसन लाइन बनी थी। ओके, so this was agreed between the British and the Tibetans and India accepts this as the border between India and China over this region. Okay, so according to it in the western sector, according to India in the western sector, then Aksai Chin becomes a part of India according to the Johnson line. Okay, another agreement was between the Tibetan government and the British government in this area in the eastern sector, which was according to the Shimla agreement, and this border between India and China in this sector is the McMahon line. Okay, now China doesn't accept both these lines as the borders between India and China. तो इंडिया तो मानता है कि जॉनसन लाइन हमारा बॉर्डर इधर है और मैकमोहन लाइन इधर है, लेकिन चाइना नहीं मानता है। ठीक है, और इनिशियली 50s के जो शुरुआती पीरियड था उसमें जब भी इंडिया ने ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सेटल करने की, बॉर्डर इशू को सेटल करने की कोशिश की, चाइना ने इस तरह से प्रेजेंट किया खुद को कि देयर इज नो डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कब अराइज होता है? बिटवीन 1957 टू 1959। ओके, चाइना बिल्ड अ रोड। अब ये रोड कहाँ से बनी थी आपको इस मैप में ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे चाइना का आता है शिनजियांग प्रोविंस। ओके, तो चाइना ने जो रोड बिल्ड की थी वो थी यहाँ से शिनजियांग प्रोविंस को तिब्बत में लासा से कनेक्ट करते हुए। ओके, तो यहाँ से ये जो शिनजियांग प्रोविंस है यहाँ से ये रोड बनी थी और अक्साई चीन से होते हुए ये लासा को कनेक्ट कर रही थी। लासा इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत। Okay, so this road was constructed in 1957 and India got to know about this in 1959. So when India raised objections on this, then China said that Aksai Chin is our territory. Okay, चाइना ने कहा कि अक्साई चीन तो हमारा एरिया है, यहाँ पे हमारा कंट्रोल है, और केवल अक्साई चीन नहीं ये पूरा एरिया नेफा का। नाउ व्हाट इज नेफा? जो अरुणाचल प्रदेश आप एट प्रेजेंट देखते हैं वो उस समय कहलाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी।
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया था ये, जिसको कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी रूल करती थी। ओके, तो ये नेफा का एरिया कहलाता था। तो चाइना ने कहा कि केवल अक्साई चीन नहीं, ये नेफा का एरिया भी हमारा है। अब आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि ये दोनों लाइंस की जिनकी बात हो रही है, जॉनसन लाइन और मैकमोहन लाइन की, दीज आर नो लाइंस दैट आर ड्रॉन ऑन द बॉर्डर्स। ये कोई ड्रॉन लाइंस नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि ये जितना भी एरिया है यहाँ पर हिमालयस हैं, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। तो ये माना गया कि मैकमोहन लाइन इधर नेफा और तिब्बत के बीच में जो सबसे ऊंची रेंजेस हैं हिमालय की, उसको हम मैकमोहन लाइन मानते हैं। उसके नॉर्थ में चाइना है और साउथ में इंडिया है। ओके, बट चाइना ने कहा कि दिस अग्रीमेंट was made between the British imperial powers and the Tibetans. We don't accept it as a border between India and China. ये हमारे कस्टमरी यूसेज से डिसाइड होगा कि बॉर्डर क्या है। और अगर कस्टमरी यूसेज को देखा जाए तो ये जो एरिया था अक्साई चीन का, ये बहुत ऊंचे बंजर पहाड़ों का एरिया है, जहाँ पे हमारी आर्मीज केवल कभी कभार पेट्रोलिंग के लिए जाती थी, और यहाँ पे जो भी कबीलाई ग्रुप्स वगैरह जो रहते हैं वो चाइना के, उधर उनका कंट्रोल चलता था। ठीक है, तो चाइना ने कहा कि ये हमारा एरिया है और इससे हमने रोड बनाई, तब ये बॉर्डर डिस्प्यूट सामने आया। एंड आफ्टर दैट अ सीरीज ऑफ टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना वर हेल्ड टू सॉल्व दिस बॉर्डर डिस्प्यूट, इन विच जो चाइना का स्टैंड था, उनका ये कहना था कि अक्साई चीन एरिया ये हमारे कंट्रोल में रहेगा, आप चाहें तो आप नेफा का एरिया अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। बट दिस वॉज outrightly rejected by India. India said that both the areas are integral part of Indian territory and it will remain our area. तो बहुत despite very long correspondence, the differences could not be resolved. और अब जो situation थी वो war की बन गई। Okay, so China attacked on both the disputed regions in October 1962. अक्टूबर 1962 में चाइना ने अटैक किया। वो द डिस्प्यूटेड रीजन मतलब कि आपका वेस्टर्न सेक्टर में भी अटैक किया और उधर नेफा वाले सेक्टर में भी, ईस्टर्न सेक्टर में भी अटैक किया। ओके, अब इस रीजन में जो इंडियन फोर्सेस थी उन्होंने चाइना को कुछ रेजिस्टेंस भी दिया। इस रीजन में एक जो बहुत फेमस लड़ाई हुई थी, जिसके बारे में आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू स्टडी ऑल्सो, ये थी रेजांगला की लड़ाई। रेजांगला था यहाँ पे एक्चुअली चुशूल जो रीजन था, चुशूल में इंडिया का एयरबेस था। ओके, तो चाइनीज जो थे वो यहाँ से आए थे और यहाँ पे रेजांगला पड़ता है। तो यहाँ पे ये लड़ाई हुई थी, रेजांगला की लड़ाई, जिसमें कि the Chinese forces outnumbered the Indian forces, and actually it was conveyed to Major Shaitan Singh, who was holding that post of Rezangla, to vacate the post. उनसे ये कहा गया कि आप अगर इस समय वहाँ पे रुकेंगे तो आप एकदम तो कोई भी बचेगा नहीं, आप पोस्ट वेकेट कर दीजिए। लेकिन अगर रेजांगला से आगे चाइनीज बढ़ जाते तो चुशूल पे उनका कब्जा हो जाता, जो हमारा एयरबेस था। तो इसलिए मेजर शैतान सिंह ने रिफ्यूज कर दिया था कि दैट आई विल नॉट लीव द पोस्ट, एंड ही केप्ट ऑन फाइटिंग विद द चाइनीज हु आउटनंबर्ड इन अ बिग वे। और वो लड़ते लड़ते 135 सोल्जर्स की टुकड़ी थी। इसके बारे में पढ़िएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको इस लड़ाई के बारे में पढ़कर। शैतान सिंह की बॉडी मिली थी बर्फ में दबी हुई अगले साल। ओके, और जो जिस हालत में मिली थी, वो लड़ते लड़ते शहीद हुए थे सारे के सारे, और उन्होंने चाइनीज फोर्सेस को रोका पूरा एक दिन के लिए। ठीक है, पॉस्ट्यूमसली उनको मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इंडिया का, वो उनको अवार्ड किया गया था फॉर द बैटल ऑफ रेजांगला। बहुत फेमस लड़ाई है ये, इस इंडो चाइना वॉर की 1962 की। तो बोथ रीजन्स में तो यहाँ पे तो इंडियन फोर्सेस ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया था, लेकिन यहाँ पर जो ईस्टर्न फ्रंट था उसमें जो चाइनीज थे वो पूरा आसाम प्लेन्स तक आ गए थे। यहाँ पे अगर आप आसाम का मैप देखिएगा तो तेजपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, तेजपुर तक चाइनीज फोर्सेस आ गई थी। तो इनिशियली इन 1 वीक ओनली द चाइनीज फोर्सेस मेड बिग एडवांसेस इनटू इंडिया, और उसके बाद लड़ाई रुक गई। ओके, तो करीब 2 हफ्ते तक उसके बाद लड़ाई रुकी रही, नेगोशिएशन चलते रहे, बट नेगोशिएशंस भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि चाइना अपनी जिद पे अड़ा था। वो यही था कि हमको ये रीजन चाहिए।
ठीक है। उसके बाद एक हफ्ते लड़ाई और होती है और फिर चाइना डिक्लेयर्ड अ सीज फायर, यूनिलैटरल सीज फायर, अपनी तरफ से चाइना ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया 21 नवंबर को, 21 नवंबर को चाइना डिक्लेयर्ड यूनिलैटरल सीज फायर और 21 नवंबर को ये लड़ाई बंद हो जाती है। बट आफ्टर, इसके बाद ये बिल्कुल क्लियर था कि इसमें इंडिया की तरफ से बहुत लॉसेस हुए थे, इंडिया को बहुत सारे लॉसेस इसमें झेलने पड़े थे। अब चाइना ने यूनिलैटरल सीज फायर इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि उसका पर्पस सॉल्व हो गया था। वो सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहता था कि हमारे से अगर आप डिस्प्यूट करेंगे तो हमारी ताकत कितनी है, और दूसरा ये रीज़न था कि देयर वॉज अ फियर दैट द बिग पावर्स में एंटर इनटू द वॉर, स्पेशली अमेरिका। Okay, so this because of this, China ended the war quickly after achieving its aim. Now, the effects of this war, India suffered heavy losses in this war because mainly because our army was very ill-equipped. हमारे पास आप गन्स और एम्यूनिशंस, आर्म्स एम्यूनिशंस की तो छोड़ दीजिए, हमारी सोल्जर्स के पास कायदे से बूट्स जो कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉर लड़ने के लिए चाहिए, उस तरह से यूनिफॉर्म्स तक नहीं थी। तो ये एक हाई ऑल्टीट्यूड वॉर थी। अगर आप देखें तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इस सर की तरफ हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट वी सफर्ड हैवी लॉसेस। ओके, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ पंडित नेहरू, वी के मेनन, he had to resign along with top army officials. For the first time, a no confidence motion was moved and debated in Lok Sabha against the Nehru government. Nehru's image as a statesman suffered a big setback after this war. नेहरू की इमेज इस वॉर से पहले तक स्टेट्समैन की होती थी, वो जो कि फॉरेन अफेयर्स के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में जिनको काफ़ी समझ है, लेकिन इस वॉर के बाद उनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगे कि नेहरू अंदर तक बिल्कुल टूट गए। Soon thereafter, Congress lost some key by-elections to the Lok Sabha. It led to the division of the Communist Party of India. CPI डिवाइड हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में एक फैक्शन था which became very sympathetic towards China. So pro-China faction broke away from CPI and they formed the CPIM, CPI Marxist. In 1964, the pro-China faction formed CPI Marxist. The war alerted the Indian leaders towards the volatile situation in the northeast, और उसके बाद ही कई स्टेट्स को वहाँ पे स्टेटहुड ग्रांट की गई। नागालैंड को स्टेटहुड मिली, मणिपुर को, त्रिपुरा को, और फाइनली नेफा को स्टेट बनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। इंडिया embarked on a military modernization drive. Department of Defense production established in 1962 and Department of Defense supplies established in November 1965. So these are the major impact, but जो सबसे बड़ा impact अगर आप long term impact देखिए तो वो ये था कि इसके बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत रियलिस्टिक हो गई। बिफोर दिस नेहरू वाज बेंडिंग ऑन अ वेरी आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया व्हेन ही टॉक्ड अबाउट नॉन अलाइनमेंट, व्हेन ही टॉक्ड ऑफ गिविंग अप द चांस ऑफ गेटिंग अ परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सो आफ्टर दिस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया बिकेम वेरी प्रैग्मेटिक, बहुत ही प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी हो गई। हमने ये रियलाइज़ किया कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में आइडियलिज्म से काम नहीं चलेगा। नेहरू को खुद अपनी भूल का एहसास हुआ और ये सबको दिखाई दिया। उसके बाद उनकी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी और एक देयर वाज एन इवेंट इन विच लता मंगेशकर वाज सिंगिंग एंड व्हेन शी स्टार्टेड सिंगिंग दैट फेमस सॉन्ग मेरे वतन के लोगों, हकीकत एक पिक्चर है जो इस वॉर के बैकग्राउंड पे बनी है, वो पिक्चर जरूर देखिएगा। तो उस पिक्चर का ये सॉन्ग है, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। और इस गाने को सुनते सुनते नेहरू की आंखें भर आई थी और वो he started crying. So that showed that he realized his mistake of he miscalculated the intentions of China. Okay, and that was a big mistake, and that this war gave India a big lesson. China का जो असली चेहरा था वो हमारे सामने आ गया और हमको पता लग गया कि हमको अपनी सिक्योरिटी को किस तरह से फुल प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये है चाइना वॉर 1962। पर आप ये बिल्कुल मत समझिए कि यहाँ पे ये इंडियो चाइना जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद 1967 में एक बहुत भी एक लड़ाई हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, जो कि आपको ज़्यादा सुनने को नहीं मिलेगी।
तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना in the post 1962 area 62 era, that would include everything till the Galwan crisis at present. And I will also be talking about the relations between the diplomatic and economic relations between India and China in the present context. Okay, so do watch the next part of Indo-China relations as well. I think the video has become very long, so I will end my talks right here. Do watch the next part of the chapter as well to complete your topic of Indo-China relations. Fine. So keep studying, keep preparing, keep making your notes. Thank you very much for watching. Have a nice day. Bye bye.